Good morning, students. Today we are going to next theorem. That is, if f be a defined and variable, f be any function which is defined and variable on closed interval a to b, and f dash is not equal to f dash b, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव a और b पर इक्वल नहीं है, देन फॉर ईच रियल नंबर t, कोई भी एक रियल नंबर t लाइंग बिटवीन f dash a एंड f dash b, कोई एक रियल नंबर t जो इनके बीच में है, देयर एग्जिस्ट c, एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल a to b such that f dash c is equal to k। ये हमें प्रूव करना है। f dash, अब ये इक्वल नहीं है तो इनमें से एक फंक्शन को, एक डेरिवेटिव को हम ग्रेटर मानेंगे। विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव वी assume that f dash a is less than f dash b। हमने ये मान लिया कि f dash a is less than f dash b। Then for real number k lying between, therefore एक रियल नंबर k जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो उसके लिए एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा जो कि f dash c इक्वल टू k होगा। For this proof, consider a function gx। gx को हमने एक फंक्शन माना जो कि इस प्रकार है f of x minus kx। We have already given that f is a defined and derivable and kx is a polynomial. Every polynomial function is also derivable. So gx is a derivable। तो आप लिख सकते हो, so gx is derivable since fx and kx both are variable। ये दोनों डेरिवेबल होंगे। रीजन क्या है? fx गिवन है कि ये डिफाइंड भी हो, डेरिवेटिव है, ये पॉलिनोमियल है। वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज ए डेरिवेबल फंक्शन। सो दिस implies derivative f dash g dash x is equal to f dash x minus k। And g of a is equal to f dash g dash a is equal to f dash a minus k, and g dash b is equal to f dash b minus k। f dash a minus k, f dash k is greater than f dash a, then f dash minus k नेगेटिव वैल्यू होगी which is less than 0। f dash b minus a is a positive quantity, f dash b minus k is greater than 0। This implies g dash a and g dash b both are of, this implies g dash a and g dash b are of opposite sign। अगर ये दोनों अपोजिट साइन है, आपने इससे पहले जो थ्योरम की थी डॉल्बर्ग्स थ्योरम, उसमें यही था कि कोई भी फंक्शन जो अपोजिट साइन का है तो देयर एग्जिस्ट सी,
this imply by Darboux theorem, there exists a sum C belongs to ओपन इंटरवल ए बी में एक इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा सच दैट g dash c is equal to 0. g dash c is equal to 0. This implies g dash c derivative at point c we get f dash. अगर इसको डेरिवेटिव करते हैं एट पॉइंट सी पे क्या आ जाएगा एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू के. तो वी हैव दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन थ्योरम. कोई भी फंक्शन जो वेरिएबल है और इक्वल नहीं है एट पॉइंट ए एंड बी पे, तो कोई भी नंबर जो इन दोनों डेरिवेटिव के बीच में लाइन करता है तो वहां पर एक c एग्जिस्ट करेगा जो कि c की f डैश c इक्वल टू k होगा. ये हमारे पास थ्योरम थी और ये इसका प्रूफ. नेक्स्ट थ्योरम, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, if f is variable at point c, then show that modulus of f is also variable at point c, provided f dash c not equal to 0. नहीं, f c not equal to 0. yes. As the result true if f of c is equal to 0. अगर रिजल्ट क्या है तब भी रिजल्ट ट्रू होगा जब एफ सी हमारा 0 के इक्वल है. अगर नहीं है तो सॉल्व इट बाय द एग्जांपल. As given that a function f is a variable at point c, that is given f is a variable. We know that every variable function is a continuous function. हमें ये पता है कि जो भी वेरिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है. पहला केस हमने ये मान लिया कि f of c नॉट इक्वल टू 0. f of c जो है वो c के f of c नॉट इक्वल टू 0. पहला केस, अगर ये 0 नहीं है, आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. पहला केस हम मान लेते हैं f of c is greater than 0. There exists a delta 1 such that f c greater than 0 है, तो एक डेल्टा 1 एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शन f of x greater than 0 whenever c belongs to, जो c हमारा वो कहाँ पर लाई करेगा, सॉरी x कहाँ पर c माइनस डेल 1 c प्लस डेल 1. Similarly, if f of c is less than 0, there exists delta 2 such that f of x is less than 0 whenever x belongs to c minus delta 2 c plus delta 2. ये दोनों कंडीशन होगी. व्हेन f of c नॉट इक्वल टू 0, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा. So f of x greater than 0 when x belongs to c minus delta 1 c plus delta 1. f of x less than 0 when x belongs to c plus minus delta 2 c plus delta
टू, सी माइनस डेल्टा टू और सी प्लस डेल्टा टू, ये हमारे पास बन गई। तो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ये तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो मॉडुलस डिफाइन हो जाएगा। दिस इंप्लाई मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है व्हेनेवर x belongs to c minus del 1 c plus del 1, x belongs to c minus del 2 c plus del 2। तो ये हमने प्रूव किया कि f is a variable at point c, then modulus of f is also variable at point c। कंडीशन ये है कि f of c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट, इज रिजल्ट ट्रू फॉर f of c इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। Result is not true। Result is not true for f of c is equal to 0। के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है। आप इसको डिफाइन कर सकते, एग्जाम्पल ले सकते हो, f of x is equal to x, f of x is equal to x। अब इसमें देखो f of 0 is equal to 0, f of 0 is equal to 0 and mod of f of x equal to mod of x। ये फंक्शन तो आपका डायरेक्ट वेरिएबल हो जाएगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। दिस इंप्लाई मोड ऑफ f इज वेरिएबल एट x जो आपके पास है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डायरेक्ट। यह आपने पहले भी किया हुआ था। ये था एग्जाम्पल।